Hello everyone and welcome to Sambhav Vlog. In today's session, we have with us Anushka, who has secured All India rank 83 in the CLAT PG 2026 examination. And today she is here with us to share her strategy as to how she cleared the examination. Then she will also be lighting us up about the fact that if you are preparing for the exam of 2027, be it for PSUs, be it for top 5, top 10 colleges, or be it for JAG entry, whatever your target is, how you need to approach this exam, when you need to start your preparation, what strategy should you follow, and accordingly this session is, I believe, is going to be very useful for the students. So accordingly, Anushka, I would firstly welcome you to the channel, and I would also like you to introduce yourself to everyone as well, please. Sure, sir. Thank you so much. My name is Anushka, and I am from Bhopal, Madhya Pradesh. I did my BA LLB honors from National Law University, Visakhapatnam, and after that, I had wanted to sit for judiciary since second year of my college. So straight out of college, I started preparing for my judiciary examinations, and I gave it 2.5. So in May 2023, I started preparing for my judiciary, and in the meantime, I gave Rajasthan Judicial Services this year, but I could not clear the prelims by 2 marks. So I started, and since the eligibility rule has come into force, so I started to look for backup options. So basically, at that time, I realized कि मुझे करना है तो I want to go for government jobs mostly. So I started filling forms for every paper. And CLAT PG was also there since LLM was also one of my backups. If not judiciary in the first attempt, then I would go for LLM. So I gave CLAT PG. I decided to sit for CLAT PG 2026, and yeah, I got So into NLS. endless, yeah. So accordingly, Yeah. if I start about my first question, ki what was your start like preparation, like how did you start your preparation and what was the approach and all? सो सर क्लैट पीजी के लिए मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी सिंस आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी फॉर द पास्ट 2.5 years ऑलमोस्ट सो ऑल माई बेसिक्स वर ऑलरेडी क्लियर while I was preparing for judiciary. तो मेरे criminal laws, I was very confident in criminal laws. Constitution was almost there क्योंकि judiciary में constitution इतना in depth नहीं आता है. So I started preparing for constitution when I decided कि मुझे CLAT PG करना है. So इतना in depth मैंने CLAT के time पे किया था. So basic constitution I was aware of, and family laws बहुत अच्छे से मेरा already prepared था, and all the JJ Act and IT Act, क्योंकि अभी जुडिशरी ने भी ये सारे सब्जेक्ट्स लेके आए हैं, अपने RJS ने अपने सब्जेक्ट्स बढ़ाए हैं, MP जुडिशरी ने अपने सब्जेक्ट्स थोड़े से IT Act वगैरह इंक्लूड किया. So I had a basic idea of all those acts जो newly added थे. तो इतनी मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई थी while I was preparing for CLAT PG. ऑल्दो जो कंपनीज एक्ट या लेबर लॉज आते हैं क्लैट पीजी में, वो मुझे अलग से प्रिपेयर करना पड़ा था इन द लास्ट 3 months दैट आई गेव माई ऑल टू क्लैट पीजी. तो उसमें मैंने एक बेसिक आइडिया. आई सी। अच्छा, तो आप बेसिकली ये बता सकते हैं कि like, आप जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की तो आप सीरियस कब से हुए थे कि हाँ चलो अब क्लैट पीजी देना है, और मतलब कब से आपने, एक होता है ना माइंडसेट आपको बना कि हाँ चलो जुडिशरी की तैयारी में कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल वो सब्जेक्ट्स पढ़ने, फिर केस लॉज ही पढ़ना है, वही पढ़ना, तो सीरियस आप कब हुए एग्जैक्टली? सो दैट वाज आई थिंक 3 months बिफोर द पेपर. मतलब वही पेपर सितंबर। डिसम्बर, हाँ अराउंड सितंबर, मिड सितंबर आई डिसाइडेड कि नहीं अब पूरा फुल फ्लेजेड मुझे क्लैट के लिए प्रिपरेशन करना है. बिकॉज सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, मैंने रीसेंट केस लॉस पे इतना ध्यान नहीं दिया था. हम वो मेजरली हम लैंडमार्क केसेस ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वही आते हैं आते पेपर के हैं, अंदर. एक हाँ। आध दो, हाँ एक आध दो हम रीसेंट पता हो तो पता हो, अदरवाइज वी डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू रीसेंट केस लॉस. तो मुझे ये पता था कि मेरा रीसेंट केस लॉस में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. तो मैंने 3 महीने तो पूरे दिए थे इसको पूरा. इंटायरली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी. आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम इन द मीनवाइल. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. मतलब स्टार्ट है उसमें करना। अच्छा, तो कमिंग टू माय नेक्स्ट या क्वेश्चन, अब देखो जैसे लाइक स्टार्ट हम लोग ये जानते हैं कि इन क्लैट पीजी वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि आते हैं, देन देयर इज केस लॉज, देन देयर इज मॉक पेपर्स। तो अगर सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं कि जुडिशरी वाले जैसे सब्जेक्ट्स में कोई कोई वो कॉन्स्टी हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गया, और ये वाले हो गए, तो इनको आपने रिवाइज पहली बात तो कैसे करा? सर मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है जनरली हर पेपर के लिए कि जो सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं मैं उनको बहुत लेट रिवाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे दिमाग में और फ्रेश रहते हैं बिफोर गिविंग द पेपर. सो माई स्ट्रैटेजीज जो मुझे पहले नहीं आता है, मैं आई अप्रोच दैट फर्स्ट.
तो सितंबर में आई स्टार्टेड विद कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी लॉ मतलब सिंस आई एम अ कोविड बैच, तो कंपनी लॉ पे मैंने एकदम वैसे क्लासेस नहीं करी हैं। तो कंपनी लॉ मुझे हमेशा से थोड़ा जाइगेंटिक सब्जेक्ट लगता है और थोड़ा डर लगता है कंपनी लॉ से, तो वो आई स्टार्टेड विद दैट फर्स्ट, कि मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे कंपनी लॉज में। एंड देन आई वेंट विद लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो मैंने पहले वो अप्रोच किया जो मुझे नहीं आता था, एंड देन आई वेंट ऑन टू क्रिमिनल लॉज एंड कॉन्स्टी एंड फैमिली लॉज, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी काफ़ी क्लियर था। बीएनएसएस मैंने बहुत ज़्यादा 3-4 बार ऑलरेडी रिवाइज कर रखा था, तो मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन लगते थे टू रिवाइज द एंटायर बीएनएसएस एंड बीएनएस। तो दैट्स हाउ आई वेंट, कि पेपर के 15 दिन पहले आई वेंट विद माई ऑलरेडी डन सब्जेक्ट्स। एंड इसमें अगर मैं ये पूछूं कि अनुष्का व्हाट रिसोर्सेज डू यू यूज, मतलब जैसे जुडिशरी वाले के लिए तो आई अंडरस्टैंड कि आपके पास पहले से नोट्स या सब कुछ होगा, बट वो सब्जेक्ट जो कि आपने कंपनी लॉ या बाकी सब्जेक्ट्स उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? तो सर मेरा पहला अप्रोच वाज, पहले आई स्टार्टेड विद बेयर एक्ट। तो लेकिन मुझे बहुत जल्दी 5-10 दिन में रियलाइज हुआ कि बेयर एक्ट मैं पूरा नहीं पढ़ सकती हूँ इन दैट 3 मंथ्स का मीन टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि आई विल गो विद केस लॉज, और फिर केस लॉ में जो जो प्रोविजंस आ रहे हैं आई विल रीड दैट सेपरेटली, एंड अगर मुझे कुछ नहीं आता था तो आई यूज टू वॉच लाइक यूट्यूब वीडियोज एंड एक्सेट्रा। बट केस लॉस के लिए मैंने आपका संभव लॉ का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट वो रहा है, कि जो आप केस लॉ समरीज वगैरह बना के देते हैं। इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद रीडिंग केस लॉज ऑन लाइव लॉ, एंड देन आई हैड अ वेरी गाइडेंस कॉल विद यू, एंड आई आस्क्ड यू कि मैंने लाइव लॉ किया है, सो यू टोल्ड मी कि इस पॉइंट पे लाइव लॉ करना इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि लाइव लॉ बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिटेल में वो जाता देता है है। और प्लस उसका एंड देन वास्ट बहुत होता है स्कोप। एग्जैक्टली, एंड देन एक ही टॉपिक में बहुत सारे केसेस होते हैं, सो वी डोंट रियलाइज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट केस एंड व्हाट इज नॉट। राइट। तो मैंने फिर वो छोड़ के आई मतलब मैंने केस लॉस तो सिर्फ संभव लॉ के उससे किए थे, आपने जो अपने ब्रीफ्स वगैरह तैयार किए थे, सो आई मेड श्योर कि मैं उनको 4-5 बार रिवाइज करूँ, एंड उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स वगैरह मेरे को समझ आते थे वो मैं करती थी। अच्छा, तो एंड उसी को आप बेसिकली पढ़ते थे बेसिकली जाके उस क्लास करके? वो मेजरली मैंने केस लॉ पे बहुत ध्यान दिया था, बहुत बिकॉज ध्यान आई नो दिया था। क्लैट भी थोड़ा केस ओरिएंटेड ज़्यादा है। पेपर है कि हाँ, नहीं, और इस या बार पैटर्न भी इफ आप देखोगे तो 2025 का जो पैटर्न था सेम टू सेम 26 में भी रिपीट हुआ है, तो और हाँ। गिवन क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इजी भी था उस चीज़ को आपका वो कर पाना। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि लाइक व्हेन टॉक अबाउट मॉक पेपर्स, तो उसका अप्रोच आपका कैसा था? तो सर शुरू में तो मैंने एक मॉक टेस्ट पर वीक देना चालू किया था, एंड दैट टू संभव लॉ आपके ने जो मॉक टेस्ट सीरीज थी उससे। एंड देन आई इंक्रीज दैट फ्रीक्वेंसी कि 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक एंड देन 3 मॉक टेस्ट इन अ वीक। एंड शुरू में मैंने ये थोड़ी सी गलती करी थी, दैट आई वाज नॉट एनालाइजिंग माय मॉक्स। आई न्यू हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज, बट आई वाज लाइक कि मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि मेरे को जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएं। बट देन थोड़े 15-20 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स एज इम्पोर्टेंट टू एनालाइज माई मॉक्स एज गिविंग इट। सो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई मॉक्स रेगुलरली, एंड मैंने पेपर के 4-5-6 दिन पहले से पढ़ना कम और मॉक एनालिसिस ज़्यादा कर लिया था, एंड दैट रियली हेल्प मी इन द पेपर। आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चंस, वो बिल्कुल आपका जो रिसेंट मॉक मैंने दिया था वो एग्जैक्टली उठ के आ गया था, द केस लॉ एंड एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक ये तो मैंने मॉक में किया है, एंड देन आई वाज डूइंग इट इन द पेपर, सो दैट वाज रियली हेल्पफुल। एंड लाइक इस पे भी ये होता है ना कि जैसे इफ यू आर डूइंग द मॉक्स, तो एक ये एक थ्योरी आती है कि नंबर ऑफ मॉक्स आपने कितने दिए, क्या दिए, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर थिंग? हम्म। सो आई थिंक आई गेव अराउंड 35 to 40 40 मॉक्स। मार्क्स। पूरा। आई डिड दैट, और मैंने थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया था अपना, कि पहले मॉक में इतने, सेकंड मॉक में इतने, थर्ड मॉक में इतने, एंड व्हाई एम आई लूजिंग मार्क्स, एंड हाँ, थोड़ा वही बिकॉज सब। आई वांटेड टू मेक श्योर, बिकॉज इट ये वाज सॉर्ट ऑफ माय लास्ट दिस थिंग बैक, सो आई हाँ, वांटेड टू मेक श्योर टू ये डू तो इट फैक्ट ऑल, गिव इट ऑल। है, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट, बिकॉज अभी क्या हो जाता है ना कि आपका जो 3 ईयर का रूल है उसी वजह से आप एलिजिबिलिटी फंस गई, फिर पेरेंट्स की तरफ से भी एग्जैक्टली। प्रेशर आता है कि कुछ कर नहीं रहे हो, ये एंड वो है, तो हाँ, फिर अभी होता है कि प्रेशर है दिमाग पे, तो फिर ऑल ऑल इन जाना पड़ता है, वो वाली चीज़ ऑल हो जाती इन, है इट वाज लाइक इट इज पूरा। दिस और नथिंग। दिस और नथिंग, वही वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक केस लॉस की अगर बात करें, तो आपने कहा था कि आपने केस लॉस मतलब वैसे समझ लॉ के उससे पढ़े, तो आपने क्या रेंज रखी थी कि मतलब आपने सारे पढ़े या लैंडमार्क पे जरा फोकस करा, रिसेंट वगैरह कैसे उसको आपने वो किया? तो सर जैसे आपने आपके पोर्टल पे प्रोवाइडेड था द रीसेंट केस लॉस, पहले 2025 के, एंड देन 2024 एंड 23, एंड देन ऐसे करके। तो पहले मैंने रीसेंट से आई वेंट इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम्म, पहले मैंने रीसेंट केस पढ़े थे 2025 के, एंड
एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट के केस लॉस पढ़ लेती थी, लाइक 10 केसेस फॉर कॉन्स्टी एंड देन द नेक्स्ट डे 10 केसेस फॉर कॉन्स्टी। इतना ज़्यादा होते भी नहीं, आई थिंक 50 इंपॉर्टेंट केस लॉस होते हैं हर सब्जेक्ट में, वी मोटा टेक। मोटा। हम्म। हाँ, मोटा मोटा अगर हम एवरेजिंग लें में। तो यस। तो हाँ, 10 केस लॉज मैं रीसेंट के करती थी, एंड देन ऐसे आई वेंट इन रिवर्स ऑर्डर। 2022 23 में इतना ज़्यादा मैंने अटेंशन पे नहीं किया था, बिकॉज वो इतना, मुझे लगता है कि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है शायद आने की, एंड रीसेंट केस लॉस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ऑल्दो क्लैट ने हमेशा हमें डिफाई भी किया है बाय गिविंग पुराने केस लॉज ऑल्सो, बट मैंने रिवर्स ऑर्डर में करे थे। करे थे आप उसमें, आई सी। अच्छा, उसके अलावा अनुष्का, लाइक अभी आपका 83 का रैंक आया है, तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि अब मतलब कॉलेज वगैरह लेना है, तो आपको एनलेस मिला। तो आप एनलेस के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं कि प्रोसेस वगैरह कैसा रहा, काउंसलिंग का एंड ऑल। यस सर। सो जब हमारा रिजल्ट आया था, 83 रैंक आया था मेरा, तो आई थिंक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही मुझे एनएलएस अलॉट हो गया था। अभी जो बस। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आया उसमें हम्म। नहीं, एनएलएस क्योंकि अलॉट हो नहीं, गया था। इवन फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में भी 88 पे भी गया है फिर से, क्लोजिंग जो गया जनरल हाँ, का। जनरल का, हाँ, 86 88 बहुत 80 कम गया है इस बार, बहुत कम गया लास्ट है इस ईयर बार, था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो वही है कि मतलब थोड़ा सा टाइम के साथ, आई मीन थोड़ा सा शिफ्ट होगा उसका अभी Yeah, पूरा, अभी हाँ। बाकी एग्जाम्स होने के बाद फिफ्थ राउंड, मतलब फिफ्थ राउंड तक इट विल बी क्लियर, तो मुझे लगता है वही रहेगा। और बाकी कंसंट्रेशन वगैरह आपने क्या सिलेक्ट किए? तो मैंने, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कमर्शियल लॉ, क्योंकि मुझे कमर्शियल लॉ में अब वो करना था, एक्सप्लोर करना था, तो बिकॉज मेरा करना पूरा था। हमेशा हो रहा है कॉन्स्टी क्रिमिनल, सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर कमर्शियल लॉ मोर। तो मैंने पहला अपना कंसंट्रेशन कमर्शियल लॉ डाला था, एंड आई गॉट दैट 2 days बैक, आई गॉट दैट मेल दैट आई हैव अच्छा, बीन अलॉटेड। अलॉटेड मतलब कमर्शियल अकाउंट मिल गया, समझ गया। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं अनुष्का, लाइक अ लॉट ऑफ देम बेसिकली, मेजरली, जो कि मतलब एग्जाम दिया बट एग्जाम अच्छे से निकला नहीं, और अब ये है कि थोड़ा सा उनको अंदर से ये हो रहा है कि सर क्या करें कैसे करें, बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू सर, ये मतलब आई हैव रियलाइज दैट इन द पास्ट 2.5 years दैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना इज नॉट इजी, एंड वो आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। जो इंसान बहुत इम्पेशेंट होता है वो भी पेशेंट हो जाता है इन दैट इंटायर जर्नी। तो ऑल आई वुड से इज थोड़ा पेशेंस रखो। तो फेलियर्स होंगे, इट्स, हम हमेशा सोचते हैं कि हम तो पहली अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर कर लेंगे। आई थिंक आई ऑल्सो हैड दैट थिंकिंग कि अरे मैं तो पढ़ने में अच्छी हूँ, आई विल डू दैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मे बी, बट वो आपका एक चीज जब टूटती है कि नो, इट्स बिकॉज द कंपटीशन इज अ लॉट आउट देयर। हम घर में रहते हैं, हम दिन भर पढ़ाई करते हैं, हमें लगता है वी आर द ओनली पर्सन हु इज गिविंग 100%, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो गिविंग हंड्रेड मोर देन परसेंट 100%। So we don't realize that, and it's okay. You win some, you lose some, and थोड़ा patience रखना पड़ेगा। सबका सब हो जाता है, अगर आपने मेहनत करी है तो you'll definitely get something out गेट of it. समथिंग आउट ऑफ इट। आई मीन लाइक जो मैंने इतने सालों में, लाइक मेरे को 4-5 साल हो गए इसको करते हुए, मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है कि आई मीन पहली बार गया रैंक 500 आया, फिर अगली बार दिया 200 आया, फिर अगली बार दिया तो अच्छा और रैंक आ गया, मतलब अंडर 20 आ गया, तो फिर अब PSUs में बैठे हैं। तो 3 बार पेपर लगा, NLU से ग्रेजुएशन, मतलब वो भी LLM भी कर लिया। तो भाई पेशेंस लगता है, और कई कई लोग तो ऐसे हैं जो कि जुडिशरी का इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू में हाँ, उनका ड्यू टू सम, मतलब वो रीजन की, मतलब इसमें नंबर ज्यादा था इसमें नंबर कम था रिटर्न में, तो उनका सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो नहीं, फिर नहीं हुआ। तो मतलब बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे होते होते रह जाता है। और बाकी ये भी होता है LLM के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी CVT है, बाकी एग्जाम्स हैं आपके, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो हम्म, उनको आप भी बहुत सारे कोशिश पेपर करिए, बहुत सारे पेपर्स है, आप उनको फोकस करें, तो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो, कैसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वही डेफिनेटली। वही चीज़ है। अच्छा, कमिंग टू माई लास्ट पॉइंट। अच्छा अनुष्का, इफ आई टॉक अबाउट द फैक्ट कि अभी 2027 में एग्जाम फिर से होना है, एंड स्टूडेंट्स विल बी वाचिंग दिस, जो सेशन देखेंगे, दे विल बी वांटिंग कि हम कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, तो उनके लिए आपके पास क्या एक वो होगा, अगर आप बोलना चाहोगे? सर, आई वुड सजेस्ट कि केस लॉज अभी से ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि पूरा ईयर राउंड, एक बार में पूरा ईयर राउंड करना बहुत मुश्किल होता है। जो लाइव लॉज में हमारे वो आते हैं राउंड अप्स वगैरह, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें। सो आई वुड सजेस्ट कि केस लॉज अपने पढ़ना चालू कर देना चाहिए अभी से, एंड क्रिमिनल लॉज एंड कॉन्स्टी पे अपना थोड़ा अगर कमांड रखेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं। अगर आप अपना कोर स्ट्रेंथ, कोर सही रखेंगे, कोर सब्जेक्ट्स वगैरह प्रिपेयर्ड रखेंगे, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू गिव। आई वुड सजेस्ट कोई भी लॉ का लीगल पेपर हो, अगर आपका कोर सब्जेक्ट्स डन है,
प्रिपेयर्ड हैं, तो कोई भी पेपर देना थोड़ा-सा मैनेजेबल हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि अपने कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड रखो एंड देन केस लॉस पे कमांड रखो स्पेसिफिकली फॉर क्लैट पीजी 2027। मेन बात तो वही आ जाती है कि आप जितना केस लॉस हो कायदे से पढ़ेंगे। एंड दूसरा फैक्ट ये भी आता है कि आप शुरू कब कर रहे हैं। जैसे आपके केस में यू आर अ स्टूडेंट जिसने कि जुडिशरी की भाई 2 साल 2.5 साल आपने तैयारी करी है, तो यू स्टार्टेड अ बिट लेट। वो स्टूडेंट जो कि या बिल्कुल ब्लैंक है, जो लास्ट ईयर के अपने कॉलेज में है, या फिर मान लो अभी बिल्कुल है कि बस कर ही लेना है, तो उनका क्या मतलब आपको लगता नहीं, मतलब कैसे आप उनको गाइड करोगे? सर आई वुड से राइट अवे स्टार्ट कर दो। अगर आपका मेन गोल है कि आपको क्लैट पीजी निकालना है विद अ ग्रेट रैंक, इफ यू वांट टू सिट फॉर पीएसयूज, इफ यू वांट टू गेट टॉप टियर एनएलयू व्हाटएवर, आई वुड से राइट अवे चालू कर दो। बिकॉज लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में रहते हो, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है किसी भी चीज़ का। एंड देन एवरीबडी इज ईदर डूइंग, अगर जिसको लिटिगेशन में जाना है, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर फ्यूचर इन अ वे। तो आपका अगर फ्यूचर ये है कि आपको क्लैट पीजी देना है, तो बिल्कुल अभी से चालू कर देना चाहिए कोई भी पढ़ाई। एंड या वी हैव इनफ टाइम। नवंबर दिसंबर में अगर पेपर होता है, 10-11 मंथ्स इज मोर देन इनफ टू गिव क्लैट पीजी। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं वो 2-2 3-3 महीने में भी निकालते हैं, 1 महीने में भी की प्रिपरेशन में भी बच्चे निकालते हैं। या बट देन उनका कोर सब्जेक्ट्स ईस्टर्न अगेन वही कोर कोर सब्जेक्ट्स अच्छे प्रिपेयर्ड होते होते हैं, अच्छे होते हैं, हैं। बिकॉज हाँ। लाइक देखिए दो चीजें होती है। एक होता है कि देखिए एक एवरेज स्टूडेंट है, एंड देन देयर आर स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक कहते हैं ना कि एक वाली बात आती है कि थोड़ा सा मतलब कम देर से थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आता है, थोड़ा सा हल्के से स्लो होते हैं। हम्म। तो उनके लिए तो थोड़ा जरूरी है कि आप अभी से शुरू करो, बिकॉज आपको पढ़ाई करने में, चीजों को ग्रास्प करने में, समझने में टाइम लगेगा। फिर आपको देखो फाउंडेशन के साथ में केस लॉज भी पढ़ना है, केस लॉज के बाद आपको मॉक्स भी लगाने हैं, तो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। तो जितनी जल्दी आप उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम, क्योंकि देखिए एक बात ये भी आ जाती है कि जैसे इन योर केस आई वुड बेसिकली गेस कि आपका डेली का प्रिपरेशन का कितना टाइम आपका लग जाता था इफ यू हैव स्टार्टेड इन सितंबर? तो डेली आई थिंक 5 to 6 hours आई यूज टू गिव, ये प्लस मॉक जो आप 2 घंटे मॉक दो देते घंटे हो दोगे वन। तो मतलब वो कुल इट्स मिला लाइक के 7 to 8 आवर्स मतलब उसमें, लेकिन तो सेवन हेक्टिक टू लेकिन हो एट जाता है। या एक्टिव हो डेफिनेटली। जाता है, और प्लस एक एंटिसिपेशन भी रहता है, एक एंग्जाइटी भी रहती है कि जो प्रिपरेशन है सही डायरेक्शन में हाँ। जा रही है कि नहीं जा रही है, कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हाँ। आप जितनी जल्दी शुरू करो, और अपने कॉलेज के टाइमलाइन के साथ, या आप मान लो कहीं तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की कहीं कोचिंग कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, उस टाइमलाइन के साथ उस चीज को अलाइन करके अगर अपने प्रिपरेशन को करी ऑन रखोगे, बिकॉज इट इज नॉट कि बस यही सब्जेक्ट्स आने हैं जो सिंपल जुडिशरी के आते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स आने हैं। हम्म। तो यू सारे नीड टू, सब्जेक्ट्स आप। सारे सब्जेक्ट्स आने हैं, और केस लॉज भी आपको अलग से पढ़ने हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी शुरू करो, जल्दी अपनी पढ़ाई को वो करो, ताकि आप एक अच्छे उस पे आ जाओ जहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ फीडबैक लूप चालू होता है। इफ यू टॉक अबाउट दैट, कि आप राइट। एक बार जैसे मॉक पेपर्स, अगर आपसे ये पूछे जैसे मॉक पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है अनुष्का, आप अगर आप बताओगे, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सर मॉक पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक पेपर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको एक तो टाइम, पूरे टाइम में आपको पेपर रीड करना बता देते हैं। इवन इफ यू डोंट फिनिश द पेपर, बट आपने सारे क्वेश्चंस रीड करे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस रीड करो। कई बच्चे ऐसा होता है, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड आता है क्लैट पीजी, तो कुछ बच्चों की रीडिंग स्पीड थोड़ी सी कम होती है। एंड रीड करके अंडरस्टैंड करना इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। कि रीड करना एक डिफरेंट बात होती है एंड अंडरस्टैंड करना इज डिफरेंट बात। तो आप उसको रीड करके कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो आप मॉक से ही सीखते हो, क्योंकि आपने एक 2 घंटे का टाइमर आपके ऊपर चल रहा है, एंड देन आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड आंसर करने हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि हमारा पेपर तो ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन एक बार आप कोशिश करो कि आप ऑफलाइन भी उतना ही अच्छे से पढ़ पाते हो या पढ़ नहीं। पाते हो कि नहीं पाते प्लस हो? आपकी सराउंडिंग्स, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एवरीबडी वुड बी साइलेंट एंड एवरी कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। ऐसा हो सकता है कि बाहर शोर हो रहा हो। इनफैक्ट इट हैपेंड विद मी रिसेंटली दैट पूरा बाहर शोर हो रहा था, एंड पेपर आपको देना ही है। यू कैंट मेक दैट एक्सक्यूज कि यार मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉक टेस्ट से ही ये सारी चीजें समझ आती है। यू गेट कंफर्टेबल बाय विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मॉक से उठाया हुआ क्वेश्चन ही कुछ अलग तरीके से रिफ्रेम करके आपको पेपर में आ जाता है। सो मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैंने इतने सॉल्व किए थे, इसलिए मुझे इतना कंफर्ट हो गया था कि हाँ ठीक है, पेपर ऑल्सो सीम लाइक सॉर्ट ऑफ अ मॉक ओनली, कि हाँ ये मॉक ही ऐसे दे रही इसी हूँ मैं। उसमें ही रहेगा, तो मतलब उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है उसकी वजह से ही। तो राइट। वो बहुत ही और प्लस अच्छा, आपके अटेम्प्ट स्ट्रेटजी उससे पहले पे क्या थी कि मतलब आप 1 से लेकर 120 डायरेक्ट गए थे, या कैसे आपने मतलब उसको पेपर को अटेम्प्ट कैसे लिया था, अब मतलब कैसी चीज है?
नहीं सर, मैं पूरा सीरीज में ही करती हूँ पेपर। मैं पूरा रीड करती हूँ पेपर। माय स्ट्रैटेजी इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन आई सॉल्व द पेपर। तो मेरा बहुत सिंपल रहता है। मुझे कोई चीज नहीं आती है तो आई स्किप दैट एंड आई हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बट आई रीड इट, हाँ, रीड इट इन अ सीरीज ओनली एंड आई मेक श्योर कि जैसे अभी ओएमआर वगैरह हमें सॉल्व करनी होती है, सो 10 क्वेश्चंस करके एंड देन आई फिल द ओएमआर एंड देन 10 क्वेश्चंस एंड देन द ओएमआर। सो दैट्स हाउ आई उस तरीके से अटेम्प्ट। आसान पड़ता है। एंड बेसिकली एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जैसे आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो या तो आप पैराग्राफ वाइज जाते हो, प्लस क्या होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये फिनोमेना इसलिए होता है मैक्सिमम क्योंकि अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स मान लो नहीं पढ़े, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी, फिर आपने लास्ट में तैयारी करी, आपने कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, देन ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कंपनी लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, उसको देख के एकदम से डर लगता है कि अरे ये पहला क्वेश्चन तो इसी का आ गया, अरे बाकी पेपर तो कितना कठिन होगा। तो आप सेट बाय सेट, मतलब अलग अलग होता है, ए सेट अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा। तो वो वाला फिनोमेना जो होता है उस चीज को आप तभी हटा सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है मॉक्स पे, कि आपको आदत है कि हाँ भाई कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस पेपर लगाना शुरू करूंगी या करूंगा, एंड आफ्टर दैट वट एवर हैपेंस इज अप टू गॉड, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको टॉप 10 में रैंक चाहिए, टॉप 100 में रैंक चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी शुड बी गुड। आप ये देखते हैं कि अगर आप मॉक पेपर्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आप यूज टू हो जाते हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन आएगा आई एम यूज टू विद इट, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी इसलिए शुरू करो ताकि ये जो फिनोमेना होता है वो आपके साथ ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कि ये जो सेशन हम लोग का आज हुआ है, आई होप कि स्टूडेंट्स जो है जो इस सेशन को देखेंगे दे विल लर्न अलॉट फ्रॉम दिस। एंड आई थैंक यू सो मच कि आप अनुष्का हमें टाइम दिया और आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर लाइक फॉर दिस लाइव सेशन। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।